بتایا کہ رمضان سے پہلے عشرے میں تقریباً 1000 سے 1500 روپے پر ڈے وہ کما لیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے بتایا دوسرا جو عشرہ ہوتا ہے اس میں تقریباً 1500، 2000، 2500 روپے کما لیتا ہے، اور جو تیسرا عشرہ ہوتا ہے وہ 3000 سے لے کے 5000 روپے تک چلا جاتا ہے، اور بعض دفعہ اس سے زیادہ بھی کما لیتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک طرف وہ غریب لوگ ہیں، مستحق سفید پوش کے جن کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، اور دوسری طرف یہ گداگر کہ جن کو آپ اور ہم پیسے دیتے ہیں، نہ صرف پیسے دیتے ہیں بلکہ ہم ان کو اس طرف مبذول کرتے ہیں کہ جناب یہ سب سے آسان طریقہ کار ہے کہ آپ آئیے اور صرف ہاتھ پھیلائیے اور پیسے لے جائیے۔ آپ اندازہ کیجئے عبادت گاہوں کے باہر یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ نماز پڑھنے گئے ہیں تو آپ کو باہر یہ ملیں گے۔ کبھی آپ نے اور میں نے یہ سوال کیا کہ یہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، یہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر دعا کیوں نہیں مانگتے؟ کبھی ہم نے یہ سوال کیا کہ ہم جن کو دے رہے ہیں وہ کون ہیں؟ کبھی ہم نے یہ سوال پوچھنے کی کوشش کی کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، ان کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ ہم نے سوال تو نہیں کیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ لیتا ہوں پہلی کال، دیکھتا ہوں کیا کہتے ہیں ان گداگروں کے بارے میں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم سندھ پولیس۔ جناب کیا کہیں گے؟ ایک صاحب محمد عرفان بلدیہ ٹاؤن سے۔ جی عرفان صاحب۔ ایک صاحب بہت خوشی ہوئی، بہت اچھا ٹاپک آپ نے رکھا ہے۔ اس ٹاپک پہ تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ شاید سمجھتے کہ یہ ایک بیکار سا ٹاپک ہے، لیکن یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ میں سمجھتا ہوں جیسے مہنگائی کا ٹاپک اہم ہے، اس طریقے سے یہ اس سے زیادہ اہم بات ہے۔ یہ اتنا اہم ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو بچت بازار میں گھوم رہا تھا وہاں پر میرے خیال ہے کہ میں آدھا گھنٹہ وہاں رہا ہوں، اور مجھے انہوں نے بتایا کہ تقریباً 5 لوگوں کی جیبیں کٹ چکی ہیں، جن میں سے 3 خواتین ہیں جن کے پرس اچھا ایک جو سب سے بڑی خوفناک بات تھی کہ پرس نہیں لے کے جاتے، اس میں سے پڑے ہوئے پیسے نکالتے ہیں، پرس کو وہیں پھینک دیتے ہیں، یا پھر اگر پرس ہوتا ہے تو تھوڑی دیر میں وہ مل جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی انہی کی شکلوں میں گداگروں کی شکلوں میں یہ اندر گھس آتے ہیں اور پھر یہ چوری ڈکیتی کا بھی کام کرتے ہیں۔ بالکل بالکل، یہ وہی لوگ ہیں دیکھ صاحب جو مقامی یہاں کا ہوگا نا، وہ کبھی ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی ڈرے گا۔ وہ زیادہ تر سفید پوش لوگ ہیں یہاں کے مقامی، ان کو ہم پوچھتے ہی نہیں۔ یہاں کا مقامی آپ کو مانگتے ہوئے نظر نہیں آئے گا۔ وہ جو سفید پوش ہے نا، وہ ان کا پیسہ جو ان کو جانا چاہیے، جو زکوٰۃ خیرات صدقات ان کو جانے چاہیے، وہ بیسیکلی یہ لے جاتے ہیں، وہ یہ لے جاتے ہیں، یہ ان کا حق کھا جاتے ہیں۔ انہوں نے تو اب ایسا کیا ہوا ہے کہ ان کی جو خواتین ہوتی ہیں، جو ینگ ہوتی ہیں، انہوں نے تو بھائی ایسے ایسے برقعے بنا کے اور ایسے ایسے حجاب لے کے اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم سفید پوش ہیں، بھائی ہم مجبوری میں مانگ رہے ہیں، ہم مانگنے والے نہیں ہیں، وہ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ایسے روپ انہوں نے دھارے ہوئے، یقین کریں جو ہماری جیسا مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے، سفید پوش ہوتے ہیں، یہ ان کا حق کھا جاتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا جی عرفان۔ اور ان کو پیسہ دینا ہم سمجھتے ہیں کہ ثواب کا کام نہیں ہے، بلکہ ہم ان کو اپریشیٹ کریں، ہم بول رہے ہیں کہ ہاں یہ کام اچھا ہے، آپ اس میں کما سکتے ہو، یہ لو پیسے۔ بالکل ٹھیک کہا جی۔ اور میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں دیکھ صاحب جو ہمارے علاقے میں ہیں، جو دن میں مانگتے ہیں اور رات کو ان کے پاس 0 میٹر بائکیں ہوتی ہیں، جو کہ ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے، نہیں خرید سکتے، 0 میٹر بائکیں ہوتی ہیں۔ اور ایک عورت کو تو میں ایسے بھی جانتا ہوں، جو ایک دوست ہے میرے جو کریانے کی دکان ہے، ان کے پاس پیسے جمع کرواتی ہیں اور ایک مہینے میں 60 سے 70 ہزار روپیہ وہ جو ہے نا گاؤں بھجواتی ہے۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب۔ ایک مہینے میں نہیں کما سکتا ہوں 60 سے 70 ہزار، یہ بھجوا رہی ہے بھائی، وہ وہاں بیٹھی رہتی ہے، میں جانتا ہوں ان کو۔ یہ ایک خالی پیسے نہیں، یہ اور بڑی چیزیں اور بڑے کرائم کرتے ہیں۔ چلے بہت شکریہ عرفان، آپ نے کال کی، بہت شکریہ، کیونکہ آپ نے بھی کہا تھا کہ بہت شکریہ آپ نے ٹاپک رکھا۔ بہت شکریہ جی۔ جی بالکل، یہ صرف پیسے ہی نہیں بلکہ دیگر کرائم میں بھی انوالوڈ ہوتے ہیں، بچوں کی کڈنیپنگ میں بھی انوالوڈ ہوتے ہیں، دیگر کا لوگوں کے گھروں میں چوری ڈکیتی کرانے میں بھی یہ پیچھے نہیں ہٹتے، کیونکہ بہت سارے کرائم میں یہ شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ بالکل اس طرح ہو جاتے ہیں کہ جیسے یقین کریں کہ مجھے ابھی الفاظ ریڈیو ہے، ورنہ میں تو بہت ساری چیزیں ان کی جانتا ہوں، اور ابھی شیئر بھی کروں گا، کچھ چیزیں آپ سے ضرور شیئر کرتے ہیں، کالر لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم سندھ پولیس FM 88.6۔ وعلیکم السلام۔ محمد ناظم درویش گلبار کراچی سے۔ جناب
उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे और आपके तमाम चाहने वाले, आपके मैनेजमेंट, आपके इदारे के जितने भी लोग हैं खैरियत से होंगे। दुआ गो। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, माशाल्लाह से आपने टॉपिक तो बहुत अच्छा रखा। अभी हमारे इरफान भाई आए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी जिक्र की, ठीक है। और ये गदागर मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में बाकायदा इन लोगों के ठेके बोलियां लगती हैं, वो तो आपको भी पता होगा। अच्छा, दूसरा चीज कि ये जो दस्तरखान लगता है ना, उनमें 50% से ज्यादा लोग जराइम पेशा लोग हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कल ही रिसेंटली हमारे दोस्त है आबिद अमीर भाई, वो अपनी फैमिली के साथ लालू के अपना सुपर मार्केट गए हुए थे, तो कल उनकी भी जेब को जो तराश के चले गए। अब वो जिस समय पैसे निकालने लगे वो देने के लिए, तो पता पड़ा जेब भी उनकी खाली पड़ी हुई है। चलो अब बंदा क्या करे, बताइए आप। बस तो बिल्कुल ऐसे ही है जी, क्या करें जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अलबत्ता देखें, कहने का मकसद ये है कि हम फिर भी इनको देते हैं, हम इससे बाज नहीं आते। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नजर में साहब ये है कि आप बजाय पैसे देने के उनको कोई बिस्किट दे दें, कोई जूस लेके दे दें, या कोई ऐसा आइटम दे दें लोग उसी टाइम पे इस्तेमाल कर सके, लेकिन पैसे ना दें। मैं तो कहता हूँ आप उनको कुछ भी ना दें, उनको कहें कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ जाइए और वहाँ आराम से गुजर बसर कीजिए, नौकरी कीजिए, जॉब कीजिए, किसी दुकान पे जाके काम कीजिए। ये भीख ना मांगे। भीख वैसे भी मजहब इस्लाम में मना है भीख मांगना। जी 70% जो है बाहर के लोग यहाँ कराची आ जाते हैं और ये दादागिरी उनका काम इख्तियार करते हैं। 70%। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। मैं रोडों पे धक्के खा रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। दरवेश साहब थे जी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमेशा करके जाते हैं और बिल्कुल दरवेशी अंदाज होता है, बहुत ही मोहब्बत वाला अंदाज होता है जी। मेलसी से हैं सोहेल खान जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेलसी शहर जी। मुझे वाकई अब तजस्सुस होने लगा है कि इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मैं मेलसी जरूर जाऊंगा। अच्छा जी, सईद खान बलोच है जी, हाय जी, हाय जी, क्या हाल है जी, अस्सलाम वालेकुम कर दिया करें जी। वालेकुम सलाम जी। इसके अलावा एक दानिश, अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आमीन आमीन आमीन। गदागर तो पूरा कराची जनाब इस वक्त लबालब इनसे भरा हुआ है, कोई जगह, कोई कोना, कोई कुतरा नजर नहीं आता इनके बगैर। कॉल लेते हैं फिर देखते हैं क्या कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब नाचिस को आबिद अमीर कहते हैं जी। आबिद अमीर साहब सुना दें क्या हुआ आपके साथ। ये नाजिम भाई को मैंने कहा भी था कि नहीं शेयर करना, लेकिन नाजिम भाई ने मेरे दिल की बात। अच्छा, पिछले दिनों मैंने एक को पकड़ा भी ना, ये जो गदागर थे ना, उनका होलिया लगता है कि गैर मकामी है, तो मैंने पकड़ लिया, उन्होंने जेब में हाथ डाला। अब लड़का था, बच्चा था, वो उसका हाथ पकड़ लिया। दिल में सोचा उसको मारूं, इसको किसके हवाले करूं, क्या। फिर मैंने सोच के, बेटा क्या कर रहे हो, आपको क्या सिखा रहे माँ बाप। और फिर अपने आप को जोड़ते वो बच्चे को मैंने जाने दिया। इनको कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते आप होटल पे खाना खाने बैठे हैं, कोई मेहमान आए आपके साथ या फैमिली के साथ हैं, ये आके ना खड़े हो जाते हैं, ऊपर से इससे बचपन होते ही जाते भी नहीं है। अच्छा, कहने का मतलब ये ऊपर तले ही हमने ये जो सीखा है कि मैं जब किसी मुल्क में जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि लगता है मांगने के लिए आए, लेकिन मैं मांगने नहीं आया हूँ, वो तो बस मैं मिलने आया हूँ। इसी तरह का हमारा ये परवान चढ़ा है। हम लोगों ने शायद ये वो बना लिया अपना मयार कि तो मेहनत नहीं करनी और आसानी से मजदूर आदमी पूरे दिन मेहनत कर रहा है, वो 1000 लेके जा रहा है और इससे आसानी से ये मांग के लेके जा रहे हैं। आपके यूट्यूब पे वीडियो देखी थी मैंने, एक तो मजदूर आदमी उसने अपनी कार खरीद ली। बोला जब मैं मिस्त्री के पास, स्टाफ के पास काम कर रहा हूँ तो साहब ने कहा कि तुम हमारा काम पूरा नहीं करके दे रहे, तो हम तनख्वाह देने में तुम्हें हमारा नुकसान हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि माजूर हूँ, तो मैंने गदाकारी शुरू की। आज मैंने कार खरीद ली, वो सेठ भी मुझे बीच देता है और 5000 आराम से घर लेके जाता हूँ। तो बस ये हमने तो कोई आसान हो गया ना, तो हौसला शिकनी करनी होगी। ओलमा से मैंने मशवरा लिया कि मैं क्या करूं, ये तो इस तरह से आते हैं। तो ओलमा के हमने कहा कि बिल्कुल हौसला शिकनी करें, बिल्कुल कोई नहीं दे, आपको कोई गुनाह नहीं होगा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। बिल्कुल इनको नहीं देना चाहिए, बल्कि जाहिर सी बात है, जो किसी आलिम ने भी कह दिया आपको, मुफ्तियान का भी, मैंने खुद भी बहुत सारे ऐसे उलमा कराम को सुना भी है कि वो मना करते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि सबसे मायूस समझा गया है कि किसी इंसान को किसी इंसान के आगे हाथ उठाकर
भीख मांगना और इल्तिजा करना, जबकि अल्लाह ताला ने उसको हाथ पाँव दिए हुए हैं। यहाँ पर इतने ऐसे माजूर हैं, यकीन करें इतनी मेहनत का काम करते हैं कि दिल खुश हो जाता है जब उनको मैं ऐसे कई ना, मैं बॉबी की बात कर सकता हूँ, बहुत अच्छा मसद एक इक्विपमेंट ऐसे एक्सरीज होती हैं चलाता है। इसके अलावा और बेताशा नाम है, बल्कि यहाँ पर मेरे पास नातखुआ आए थे, ब्लाइंड है वो, और जबकि आलिम का कोर्स कर रहे हैं और माशाल्लाह शायद 6 महीने में आलिम बन जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये माजूरी ये जानबूझ के पैदा करते हैं और माजूर ये होते नहीं है। बहुत शुक्रिया आबिद, अपना ख्याल रखा करें। सीखी ये लाइन आपसे, मैंने सीखी है, आज ये लाइन सीख के जा रहा हूँ आपसे। आपने कहा कि मस्जिद में जो गेट पे खड़े हैं और वो अंदर नमाज के लिए नहीं आ रहे, तो क्यों नहीं पूछा? मैंने आपके शो से आज ये सीख के जा रहा हूँ। जी जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह आबिद, बहुत ख्याल रखा करें अपना। जी बिल्कुल, इस वक्त आबिद क्या, आबिद अमीर के अलावा मैं, आप और तमाम जब मार्केट जाते हैं तो बहुत होशियार रहा करें कि कभी भी किसी भी वक्त हमारी जेब कर सकती है। जी जी, बाबर लाला जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टॉपिक बहुत अच्छा है जी, बिल्कुल टॉपिक अच्छा है, लेकिन ख़तरनाक है क्योंकि आपकी और मेरी जेबें कट रही हैं, सिर्फ भीख मांगने से नहीं, वैसे भी जेबें काटी जा रही हैं। और वो काटता कौन है? उसमें ये लोग भी इन्वॉल्व हैं। ज़रूरी नहीं कि पुलिस खड़े होकर अपना रोल प्ले करे, आपका और मेरा भी काम है, हम आंखें खोल कर बाज़ार जाएं, आंखें खोल कर शॉपिंग करें, आंखें खोल कर रहा करें, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त कोई भी झपट सकता है। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर तबीयत तो कैसे हैं? खैरियत से? जान दे बोल रहा हूँ कटी पहाड़ी से। जनाब क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह करम सर, माशाल्लाह टॉपिक तो बहुत अच्छा रखा है, लेकिन सर ये तो मेरे तकरीबन 25 साल हो गए इस शहर में, बल्कि ज्यादा ही हो गए। ये सुनता रहा हूँ कि ये सिंगल ठेके पे, वो सिंगल ठेके पे, वो सिंगल ठेके पे। नंबर एक, ये ठेका लेने वाला और देने वाले कौन होते हैं? और फिर जो है ना, सबको पता है कि ये बिकते हैं, तो इन पे हाथ क्यों नहीं डाला जाता? ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा सर ये है कि जितने भी सवाल करना मना है, यही बात है ना? तो हर जगह में मस्जिद में या इसमें सवाल करना मना है, अच्छा नहीं है। देने वाला हाथ जो है ना, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। तो अक्सर परसों ऐसा इत्तेफाक ही हो गया, एक कारी ले लो या उलमा तो बन जाओ, उसने एक बंदे को डांटा बहुत बुरे तरीके से मस्जिद में। ठीक है। तो जब हमारे उलमा ये जब चंदे के लिए खड़े होते हैं तो बोल देते हैं कि भाई इसके चंदा देना जायज है, इसको चंदा मस्जिद नहीं, उलमा बोल देते हैं कि भाई इसको चंदा दे दो या इसको जो है ना किसी इदारे के लिए चंदा दे दो। क्या वो गलत है? और ये जो बाहर मैं मांगता हूँ जाके मस्जिद में खड़ा होता हूँ, तो क्या ये सही है या वो गलत है? सर इसी का जवाब तफसील से दे दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी अबू बकर, आपने जो सवाल किया वो तो कोई आलिम ही आपको या मुफ्ती जवाब दे सकते हैं। फेसबुक पर इस वक्त जनाब चौधरी तैमूर दिलबर हैं जी। आई एम चौधरी तैमूर दिलबर फ्राम खादोरा मीरा गाजी भंबर आज़ाद कश्मीर से। जनाब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपको शो बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, सिर्फ आप ना सिर्फ देखते रहा करें, बल्कि इसी तरीके से सवाल कोई हो तो ज़रूर किया करें, हमें बताया करें कि वहाँ के क्या हाल हवाले, ताकि हम वो भी यहाँ शेयर करें। इसके अलावा चौधरी, अच्छा माई सलाम टू चौधरी अल्ताफ़ हुसैन आजिज़ साहब को जी, इस्लाम कह रहे हैं तैमूर साहब आपके लिए जी। इसके अलावा कौन है जी? मोहम्मद शराज। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपको शो बहुत अच्छा है जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद शहबाज। इसके अलावा और भी हैं जी, मैं पहले कॉल लेता हूँ क्योंकि फिर कहते हैं कॉल नहीं लेते, कॉल वैसे ही बहुत सारी जा चुकी होती हैं, स्किप हो चुकी होती है मेरे से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं पिछले 23 तारीख को जा रहा था इस्लामाबाद जनाब, तो ये बस में बनारस से बैठे बंदे और गोली मार में उतरे और जेब काट लिया मेरा। चलो जी। और माशाल्लाह बातें ऐसी कर रहे थे अच्छा कि सिंध में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अच्छा हसन जो माने खुद बोल रहे थे अपने आप को। अच्छा, ये हमारे कौम में ऐसे है कि जब तक वो चोरी नहीं करे तब तक उसकी शादी नहीं होती है। अच्छा, अल्लाह अकबर। हाँ, और उसके अलावा जो है दरख्त पे चढ़ जाएंगी, वो मर्द शादी होगा तो मर्द पहले चढ़ जाएगा दरख्त पे और औरत नीचे बैठे रहेगी। वो बोलेगी मैं कमा के खिलाऊंगी, वरना तू आजा, बस नीचे आजा, तू गिर नहीं होना मर। अच्छा, ऐसी ऐसी बातें करके उसने जेब काटा मेरा। मैं मैं तिब्बत सेंटर से रखे में बैठा हूँ, कैंट 6 में उतरा हूँ, फिर जेब नहीं है, जेब में पैसे नहीं है।
हाय हाय, बताइए ऐसे भाई बस क्या बोला जाए आपको, बस क्या इसके तो है? अल्लाह ही, इसीलिए अल्लाह ताला ने मेरा ख्याल सिस्टम रखा हुआ 2 साल या 80 साल पहले या पहले हो सकता है गर्क हो जाए सिंध। खैर सिंध क्या है, ये तो अगर आप पूरे कहीं भी चले जाएं ये आपको मिलती हैं चीजें, अल्लाह इससे तो खैर हम नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते कब आप कब देखें ना गर्क होगा। अफगानिस्तान में सूद का